Hello students, hope you all are fine. So dear students, today we will do the next topic of chapter 2, that is LCM. LCM means least common multiple. Here L stand for least, C for common and M for multiple. The least common multiple is the first common multiple of two or more than two numbers. Okay, so first common multiple will be the least common. Least means smallest. The first common multiple of two or more than two number is called the least common multiple. Here I have taken an example which clears you properly. That example is find the least common multiple of 2 and 3. So to find the least common multiple of 2 and 3, we will write the multiples of 2 and multiples of 3. And all of you know that what are the multiples. Multiples are the, just we will say that multiples are the tables. Okay, and the exact definition is multiple is the product of the number by एनी नेचुरल नंबर. अगर आपको 2 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं तो 2 के मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए आप 2 को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी द मल्टीपल्स ऑफ 2. Okay, but in simply we can say that multiples are the tables of that particular number. So multiples of 2 are 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and so on. And multiples of 3 are 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Okay, so what are the common multiples? Common क्या होते हैं जो हमें दोनों में मिल जाते हैं. हमारे पास यहाँ 2 नंबर्स हैं तो the numbers which occurs in both list, the multiples of 2 and the multiples of 3, that will be the common multiple. अब यहाँ पर 2 है बट यहाँ नहीं है, so 2 is not common multiple of 2 and 3. 6 and 6 6 occurs in both the list of 2 and 3, so 6 is the common multiple. Again 12 is also occurs in both the lists, so 12 is the common multiple. And the 2 or more than 2 numbers have infinite common multiples. इसका मीनिंग ये नहीं है कि हमें इसके बाद कॉमन मल्टीपल्स नहीं मिलेंगे. ओके, तो नंबर्स हैव इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल्स, बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स होते हैं, बट द एलसीएम विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन होगा? विच अक्कर फर्स्ट, जो सबसे पहले हमें मिलेगा. तो सबसे पहले हमें कौन सा मिला है? 6. सो 6 इज़ द एलसीएम. तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया है कि एलसीएम क्या होता है. एलसीएम इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स. द नेक्स्ट इज मेथड्स टू फाइंड एलसीएम. अब यहाँ पर भी हमने एलसीएम ही फाइंड किया है और एलसीएम फाइंड करने के और भी मेथड्स होते हैं. तो हेयर द 3 मेथड्स आर गिवन. The first is by listing multiples, the second is by prime factorization, and the third is by common division method. Okay, so first method by listing multiples means आपको जो numbers दिए हैं उनके आपको multiples लिखने हैं और फिर आपने common multiple उनका LCM फाइंड करना है. क्लियर? और यही जो प्रोसेस हमने ऊपर किया है वो सेम मेथड है by listing multiples में. बट इन by prime factorization method you have to prime factorize each and every number. ठीक है, आपको जो नंबर्स होंगे उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है और उसके बाद जो मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू होगी किसी भी फैक्टर की उसका आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है. क्लियर? दैट विल बी द एलसीएम. यहाँ तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मेथड्स की, बट जो हमने प्रोसेस करना है उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा. नेक्स्ट इज़ बाय कॉमन डिवीज़न मेथड. तो कॉमन डिवीज़न मेथड में क्या होता है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बट सभी नंबर्स की एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसमें एक प्राइम नंबर जो होता है वो 2 और मोर देन 2 नंबर्स को भी डिवाइड कर सकता है. क्लियर? और जो एलसीएम होगा तो एलसीएम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द prime factors. Okay, so let me discuss the examples based on these 3 methods. So first is now these examples I have taken from worksheet 6.
वर्कशीट 6 क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड एलसीएम बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स। ओके, यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बोला था अभी, फर्स्ट मेथड जो हमने डिस्कस किया था बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स, तो वही मेथड आ गया फाइंड एलसीएम बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स। तो हेयर 3 numbers are given 4, 5 and 2. To find the LCM of 4, 5 and 2, you just write the multiples of 4, then multiples of 5 and then multiples of 2. यहाँ पर मैंने 4, 5 और 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं। अब यहाँ पर ये भी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें कितने मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, तो यू कैन राइट एज मैनी मल्टीपल्स, आप कितने भी लिख सकते हो, बट वी हैव टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें कॉमन मल्टीपल मिल जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखे हैं। ठीक है, मेरे पास स्पेस इतना था इसलिए मैंने यहाँ तक लिख लिए 28 तक। नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 5 35 तक लिख लिए हैं। मल्टीपल्स ऑफ 2 यहाँ पर मैंने 18 तक लिखे थे, मेरे पास 18 तक स्पेस थी। बट जब मैं यहाँ पर कॉमन मल्टीपल फाइंड कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर 20 मिल गया, यहाँ पर 20 मिल गया, पर यहाँ तो मैंने 18 तक ही मल्टीपल्स लिखे थे, उसके आगे तो मैंने मल्टीपल्स ही नहीं लिखे हैं। तो इट मीन्स जो कॉमन मल्टीपल होगा वो या तो 20 होगा या फिर 20 से ग्रेटर नंबर ही होगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने फिर आगे कंटिन्यू किया इसका टेबल। तो 18 का जो नेक्स्ट मल्टीपल होगा दैट इज़ 20। तो इट मीन्स द 20 इज़ द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर मैंने इसको सब, ठीक है। सो व्हाट इज़ द एलसीएम? एलसीएम इज़ द 20 इज़ द एलसीएम। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। तो सिमिलरली जो नेक्स्ट इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आपने ऐसे ही करने हैं। मल्टीपल्स मीन्स आपको टेबल लिखना है। बट ये जो मेथड है ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। वाई? बिकॉज इफ़ वी हैव टू फाइंड द LCM ऑफ ग्रेटर नंबर्स देन व्हाट यू विल डू। आप इतने बड़े नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पर, तो आप उनका टेबल्स लिखोगे और कहाँ तक लिखोगे, उसमें तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो दिस मेथड इज़ नॉट सो सक्सेसफुल। तो इसलिए हमने, हमारे पास अगर लार्ज नंबर आ जाए, बड़े नंबर आ जाएं, तो हम ये मेथड तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते हैं। तो फिर और मेथड्स हैं हमारे पास जो हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो the next question is based on the second method, that is find LCM by prime factorization method. तो here the numbers are 16, 12 and 18. okay, तो आपको यहाँ 16, 12 और 18 का LCM फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में फर्स्ट यू विल फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। ओके, आपके पास 3 नंबर्स थे, आपने 3 नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन की है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ द डिवीज़न बाय द प्राइम नंबर। ओके, सो 2 के साथ ये डिवाइड हो गया, नेक्स्ट अगेन 2 के साथ। तो ये तो हम पीछे भी कर चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है और नेक्स्ट हमने 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एलसीएम फाइंड करने में। इसको आप ध्यान से समझिए। इसमें हमें क्या करना होता है, वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी फैक्टर। तो यहाँ पर जो हमें फैक्टर्स मिले हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर हमें फैक्टर्स मिले हैं 2 ही हैं सभी। यहाँ पर हमारे पास 2 और 3 हैं। इट मीन्स एक फैक्टर हमारे पास 2 हो गया, एक फैक्टर हमारे पास 3 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर भी 3 है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 ही टाइप्स के फैक्टर हैं, दैट इज़ 2 and 3। सो टू फाइंड द एलसीएम वी हैव टू टेक द मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू ऑफ 2 and 3। हमें यहाँ देखना है कि 2 की मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू क्या है। 2 की मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू मीन्स 2 नंबर्स में, हर नंबर में जो है वो कितनी बार आ रहा है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर आया। क्लियर? तो यहाँ पर जो 2 था, 16 में 2 जो था वो 4 टाइम्स आया, 1 2 3 4। 12 में 2 टाइम्स आया है और 18 में 2 1 टाइम आया है। तो मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू
टू की कितने हैं, यहाँ पर कितने टाइम्स टू हो गई, हाउ मैनी टाइम्स टू अकर्स मैक्सिमम, तो इन 16 टू अकर मैक्सिमम टाइम 4 टाइम्स आ रहा है, तो वी विल टेक द मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू ऑफ 2 फ्रॉम हेयर, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 इज़ द मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू ऑफ 2। अब 2 की मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू तो हमने ले ली, अब हमें 3 की मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू लेनी है। अब 3 के यहाँ पर जो अकरिंग वैल्यू है दैट इज़ 0 टाइम 3 है ही नहीं है, यहाँ पर 1 टाइम 3 है और यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 टाइम्स 3 है, तो ज़्यादा बार जो 3 है वो कहाँ आ रहा है, इस नंबर में। सो द मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू ऑफ 3 इज़ 2 टाइम्स 3, सो वी विल टेक 2 टाइम्स 3 also with here, and to find the LCM we will find the product of these all factors, हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48 and 48 3 ज़ार 144 and 144 is the LCM of 16, 12 and 118. Clear? Let me do one more example of this. Now I have taken C part of question number 2, that is 25, 30 और 40. ओके, तो यहाँ 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है, 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है और 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है। अब हमें LCM फाइंड करना है, तो LCM फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू ऑफ एवरी फैक्टर। अब हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो 5 फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है और कोई नहीं है। हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं, प्राइम नंबर्स आए हैं, वो कौन कौन से हैं, 2, 3 एंड 5। अब 5 की जो मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू है, यहाँ 2 टाइम्स 5 है, यहाँ 1 टाइम 5 है, यहाँ पर भी 1 टाइम 5 है, तो मैक्सिमम टाइम 5 हाउ मैनी टाइम्स आर देयर, 2 टाइम्स आर देयर, सो 5 इंटू 5। अब 5 की मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू तो हमने ले ली, नेक्स्ट वी विल टेक द मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू ऑफ 2। जो 2 है वो ज़्यादा बार कितने टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ तो 2 है ही नहीं, यहाँ 1 टाइम है और यहाँ 3 टाइम्स है, सो मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू ऑफ 2 इज़ 3 टाइम्स 2। यहाँ पर मैंने 3 टाइम्स 2 को लिया, नेक्स्ट 5 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, नेक्स्ट इज़ 3। अब 3 की मैक्सिमम, हमने हर फैक्टर की मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू लेनी है। 3 की यहाँ तो है ही नहीं है, यहाँ 1 टाइम है और यहाँ पर भी नहीं है, इट मीन्स मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू ऑफ 3 इज़ 1 टाइम 3। क्लियर? अब यहाँ पर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे और हमें LCM मिल जाएगा। सो मल्टीप्लाई दिस, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200 and 200 3 ज़ा 600. So 600 is the LCM of these three numbers. क्लियर? तो इसमें सिर्फ एक स्टेप आपको समझना है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप सबको क्लियर है, बस LCM में आपको एक स्टेप समझना है कि हमें LCM क्या होता है। LCM इज द मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू ऑफ एवरी फैक्टर। जितने भी आपको फैक्टर्स मिलते हैं उन सब की मैक्सिमम अकरिंग वैल्यू का प्रोडक्ट है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड मेथड था वो भी कंप्लीट हो जाता है। द नेक्स्ट मेथड इज़ बाय कॉमन डिवीज़न मेथड। ये मेथड जो है वो बहुत सिंपल भी है और हर तरह के नंबर को का LCM फाइंड करने में भी हमें बहुत यूज़फुल होता है। तो दिस मेथड इज़ द बेस्ट मेथड इन माय ओपिनियन। ठीक है, अगर हम कभी भी LCM फाइंड करते हैं तो हम जल्दी से कॉमन डिवीज़न मेथड ही करते हैं। तो व्हाट इज़ कॉमन डिवीज़न मेथड? कॉमन डिवीज़न मेथड क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बट वी डू द एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दिस मेथड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ based on this method, find the LCM by common division method। तो इन कॉमन डिवीज़न मेथड आपको जितने भी आपके पास नंबर हैं, मे बी 2 और मोर देन 2, 3 4 5 कितने भी नंबर है, यू हैव टू टेक द ऑल द नंबर इन वन डिवीज़न साइन। ओके, आप सब
नंबर्स को एक ही डिवीज़न साइन में लेते हो और आपको इनको प्राइम फैक्टराइज करना है। क्लियर? तो प्राइम फैक्टराइज करने के लिए अब आप चेक करेंगे कि सब फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, तो यू जस्ट चेक विच नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2. ओके, इज 12 इज डिविजिबल बाय 2? यस, सो वी विल टेक 2. अगर कोई एक भी नंबर यहाँ पर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हम उसको ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 को ले रहे हैं। 2 6 और 12। अब नेक्स्ट को भी चेक करना है क्या 15 इज़ डिविजिबल बाय 2? 15 तो 2 से डिवाइड नहीं होता है। सो वट वी विल डू, क्या करेंगे अब हम, 15 इज़ रिटन एज इट इज़। आप 15 को वैसे ही लिख दीजिए, बीच में कॉमा लगा सकते हैं इनके, ओके, या फिर हाइफन का साइन भी लगाते हैं कहीं। नेक्स्ट नंबर इज़ 45. 45 इज़ डिविजिबल बाय 2? नो, सो 45 इज़ रिटन एज इट इज़। ओके, नाउ अगेन द सेम प्रोसेस, इसको हम रिपीट करेंगे जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में करते हैं। अगेन चेक करेंगे क्या कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। यस, 6 इज़ डिविजिबल बाय 2, तो मैं 2 को ले रही हूँ। 2 3s आर, नाउ 15 एज इट इज़ नहीं होता है, 45 भी नहीं होता है। नेक्स्ट, इज़ देयर एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2? नो, कोई नंबर नहीं है अब 2 से डिवाइड होने वाला। नाउ टेक द नेक्स्ट प्राइम नंबर, दैट इज़ 3. इज़ देयर एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3? यस, यहाँ 3 हो रहा है 3 से डिवाइड। 3 1s are 3। अब इसी को नहीं करना है, नेक्स्ट चेक करते जाना है क्या नेक्स्ट नंबर 3 से डिवाइड होता है। यस, 15 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो इसको भी कर देना हमने। 3 5s are 15। नेक्स्ट 45 इज़ डिविजिबल बाय 3। अब आप बोलोगे 3 10s are 30, यहाँ तो टेबल ख़त्म हो गया। तो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट इसीलिए तो किए हैं। चेक इट, इज़ इट डिविजिबल बाय 3? Sum of the digit 5 plus 4 9. Yes, 9 is divisible by 3. It means 45 is also divisible by 3. अगर आपको नहीं आता है आगे 10 से नेक्स्ट टेबल रीड करना, तो यू कैन डिवाइड। हमें इतना तो क्लियर है कि ये 45 3 से डिवाइड होगा, पर क्वेश्चन क्या होगा उसके लिए आप 45 को 3 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। क्लियर? सो 3 15s are 45। अब नेक्स्ट अगेन चेक करिए, 2 से तो कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? यस, अब 3, ये तो 1 होगा, हो गया। हमें क्या करना है, सभी के क्वोशंट को 1 1 बनाना है। ये तो 1 हो गया। अब ये 2 नंबर्स बचे हैं, इनमें से कोई एक नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। यस, 15 इज डिविजिबल बाय 3, तो मैं 3 को ले रही हूँ यहाँ पर। 1 एज इट इज़, 5 नहीं होता है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। 3 5s are 15। अब 5 3 से तो नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज़ 5। 1 एज इट इज़, अब 5 1s are 5, 5 1s are 5। ऑल द क्वेश्चंस बिकम 1। सभी के क्वेश्चंस 1 बन गए। नाउ द प्रोसेस इज स्टॉप्ड, यहाँ पर हम रुक जाएंगे। एंड व्हाट इज़ द एलसीएम? वी हैव टू फाइंड द एलसीएम हियर। सो एलसीएम विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। ये जो हमें फैक्टर्स मिले हैं इन सब का प्रोडक्ट ही एलसीएम है। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, and 36 5s are 180। ओके, तो 180 is the LCM। Clear? Similarly, we will solve one more example, 24 90 48 here। तो आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपको क्लियर होगा। 24 90 48, आप कॉमर्स भी लगा सकते हैं नंबर्स के बीच में, या फिर हाइफन का साइन भी। 2 12s are 2, 45s are 2, 24s are। कोई भी इवन नंबर आ जाएगा वो तो 2 से डिवाइड होगा ही, ठीक है। सो 2 6 45 नहीं होगा, 2 12s are। नेक्स्ट अगेन 6 and 12 आर इवन नंबर, सो ये 2 से होंगे। 2 3s are 45, 2 6 are, ये 1 ये 6 इवन नंबर है तो अगेन ये 2 से होगा। जो नहीं होते हैं उनको हम एज इट इज़ लिखते जाते हैं। 3 ऐसे ही आ गया, 45 भी आ गया,
2 3 सा। अब 2 से तो कोई नंबर नहीं होगा, 3 से करेंगे। 3 1 सा और 3 15 सा, 3 1 सा। हमें सभी क्वेश्चंस को 1 बनाना है। ये तो 1 बन गए, अब इसको भी प्राइम फैक्टराइज करना है आपने। 3 से चला जाएगा ये, 5 सा 1 सा। नेक्स्ट 5 से 1 1 1। सभी कंप्लीट प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई सबकी। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, और इन सब का जो प्रोडक्ट होगा, इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। क्लियर? सो प्रोडक्ट इज 720. So 720 is the LCM of these three number. Similarly, in next example there are 4 numbers given. तो 4 numbers given है, तब भी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर 4 numbers को ले लेंगे, 30, 24, 36 एंड 16। सभी इवन नंबर हैं तो सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 15 ज़ा, 2 12 ज़ा, 2 18 ज़ा और 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट ये 3 इवन है, ये नहीं है, तो ये 3 तो हो जाएंगे। 15 एज इट इज़ लिख लिया। 2 6 ज़ा, 2 9 ज़ा, 2 4 ज़ा। अब ये 2 इवन है, ये तो 2 से होंगे। नेक्स्ट 15 एज इट इज़, 2 3 ज़ा, 9 एज इट इज़, 2 2 ज़ा। नेक्स्ट अकेला 2 ही इवन नंबर है। अब 15 एज इट इज़, 3 9 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट 3 से, 3 5 ज़ा, 1 ज़ा, 3 3 ज़ा और 1 एज इट इज़। अगेन 3 से 5 1 1 1। नेक्स्ट लास्ट इज़ 5 1 1 1 1। So LCM is the product of these factors. So 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. 4 times 2, 2 times 3 and 1 times 5. Find the product and the product will be the LCM. Again the product is 720. So these are some examples, and I hope you understand all the methods of LCM. So in worksheet 6, the first 3 questions are based on 3 methods. Watch the videos on 1 or 2 or 3 times and then try to solve these questions. So thank you.